Welcome to Bajajopedia. Think of the BSc and NSE as a roller coaster, reacting to every twist and turn of the election. As voters head to the polls, these markets go up and down, reflecting the fear, excitement and hope of investors. इलेक्शन के टाइम स्टॉक परचेस करना काफी इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग हो सकता है। इलेक्शन के पीरियड में काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के कारण मार्केट प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। 2024 इलेक्शंस मार्केट को कैसे इंपैक्ट करेंगे, इस पे जंप करने से पहले लेट्स क्विकली सी कि पिछले कुछ सालों से इलेक्शन के क्या इंपैक्ट रहे। 2004 इलेक्शन में द सेंसेक्स फेल बाय 11% इन अ सिंगल डे आफ्टर द अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री ऑफ द कांग्रेस लेड यूपीए। द मार्केट फियर्ड इंस्टेबिलिटी and policy changes. Then 2009 election में the market reacted positively to the UPA's return to power with clear majority, leading to 17% surge in the Sensex in 2 days. This reflected investor confidence in political stability. फिर 2014 election के time the Sensex soared to new heights, gaining around 8% in the month leading to the BJP's victory under Narendra Modi, reflecting optimism about economic reforms and pro-business policies. 2019 elections were similar to 2014. The market rallied before the election, gaining about 4% in a weeks prior. Overall देखा जाए, सबसे ज़्यादा important factor जो market को affect करता है, election उसमें से एक है। Election result से investor sentiments भी काफी change होता है। Policy expectation जैसे pro-business policies like tax reform and deregulation boost market confidence. For example, in 2014, BJP promises GST implementation and ease of business doing led to a significant market rally. Also, investor sentiments, क्योंकि uncertainty leads to increased market volatility. For instance, the India Week spiked by over 20% leading up to the 2019 election results. और कुछ global factors भी होते हैं, because favorable global economic condition amplify positive election outcomes. During the 2014 election, the global market recovery complemented the positive sentiments in India, driving a strong rally. Or global tension, such as US-China trade war in 2018-2019, which impacted investor sentiments and market stability to political changes. अब क्विकली आपको बताते हैं ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं इलेक्शंस के पहले। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट. These sectors often see significant movement based on promises of urbanization projects and infrastructure development. For example, BJP's focus on smart cities and urban development projects have historically boosted these sectors. फिर banking and financial services. Regulatory policies, interest rate expectation, and fiscal measure impact these sectors. Pro-reform government tends to positively influence banking stocks. Also the energy and resources. Policy on energy securities, renewable energy incentives, and fuel pricing reform can lead to fluctuation in this sector. Here are some tips that you can follow. Research और analysis. इलेक्शन के पहले थोरो रिसर्च और एनालिसिस करना जरूरी है। देखो कौन सी पार्टीज और कैंडिडेट स्ट्रांग है और उनके इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है। पॉलिसी जैसे टैक्स चेंजेस और इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्सेट्रा कंपनी के प्रॉफिट और ग्रोथ को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन. पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना इलेक्शन के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिफरेंट सेक्टर्स और एसेट क्लास में इन्वेस्ट करके आप अपने रिस्क को स्प्रेड कर सकते हैं। स्टे अपडेटेड. पॉलिटिकल न्यूज और मार्केट ट्रेंड्स को क्लोजली फॉलो करो। इंस्टेंट रिएक्शन से बचने के लिए इन्फॉर्म्ड और रैशनल डिसीजन लिया करो। लॉन्ग टर्म फोकस. इलेक्शन के शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को इग्नोर करके लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस करो, क्योंकि मार्केट यूजुअली लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक फंडामेंटल के बेसिस पे परफॉर्म करता है, नॉट जस्ट पॉलिटिकल चेंजेस. कंसल्ट अ फाइनेंशियल एडवाइजर. अगर इलेक्शन के टाइम मार्केट मूवमेंट समझने में मुश्किल हो रही है तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लो। वो आपको मार्केट की बेस्ट स्ट्रैटेजीज और डिसीजन लेने में हेल्प कर सकते हैं। इलेक्शन का स्टॉक मार्केट पे इंपैक्ट. वॉलेटिलिटी इंक्रीज. इलेक्शन के टाइम पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के कारण मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है. इन्वेस्टर्स की स्पेकुलेशन और सेंटिमेंट्स स्टॉक प्राइसेस को तेजी से मूव करने में मजबूर करते हैं. सेक्टर स्पेसिफिक इंपैक्ट. इलेक्शन के बाद जो भी पार्टी पावर में आती है उसकी पॉलिसीज स्पेसिफिक सेक्टर्स को इंपैक्ट करती है. जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रॉमिस से कंस्ट्रक्शन स्टॉक बढ़ सकते हैं, वैसे स्ट्रिक्ट रेगुलेशन से हेल्थ केयर या एनर्जी स्टॉक पे नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है. इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स. इलेक्शन रिजल्ट से इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स भी काफी असर पड़ता है. अगर मार्केट को लगता है कि नई गवर्नमेंट पॉलिसीज इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट कर सकती है तो मार्केट उस पर पॉजिटिव रिएक्ट करता है, वरना अगर पॉलिसी अनफेवरेबल लगी तो मार्केट नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है. फॉरेन इन्वेस्टमेंट. इलेक्शन का इंपैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे भी होता है. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से फॉरेन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट फील करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, जबकि इनस्टेबिलिटी से इन्वेस्टमेंट्स कम हो सकते हैं. इन शॉर्ट, इलेक्शन के टाइम स्टॉक परचेस करते वक्त
इन्फॉर्म्ड और स्ट्रैटेजिक अप्रोच लेना जरूरी है। मार्केट की वॉलेटिलिटी और पॉलिटिकल चेंजेस को ध्यान में रखते हुए अपने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लो ताकि आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव हो सके। इस रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पे these would be the sectors to focus on in 2024. टेक्नोलॉजी एंड IT, रिन्यूएबल एनर्जी एंड हेल्थ केयर। इलेक्शन काफी सारी अनसर्टेनिटी लाते हैं, बट दे ऑल्सो ऑफर अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। By understanding historical trends, policy expectation, and sectoral impacts, investor can navigate the electoral landscape and make informed decisions. So plan wisely and subscribe to our channel for more such information. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.